Think Sakshar, where every clue begins with learning. Hello everyone, welcome to this learning journey with Think Sakshar. Our aim is to break down complex forensic concepts into understandable lessons. I am Charu Saini, a forensic biologist and educator. In this journey, I'll be your guide to your forensic biology. In today's session, we will explore about introduction to forensic biology. Forensic biology is a fascinating field in itself under forensic science. So let's first know the contents of this session today. What is forensic science? Then brief history of forensic science, branches of forensic science, famous cases that were solved using forensic biology, definition of forensic biology, types of biological evidences, types of cases under forensic biology, applications of forensic biology, and then conclusion. So first, to know about forensic biology, we will have to discuss about forensic science. Forensic science is application of basic sciences to criminal justice system. Basic sciences such as physics, chemistry, biology, mathematics, statistics, etc. These are utilized to identify or compare physical evidence in the investigation of crime. तो forensic science है क्या? Forensic science is just an application of these all types of sciences in a field, and this field is forensic science. और इसमें होगा हमारा मतलब कि इन सभी की एप्लीकेशन एक क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए. सो ये किसमें, जब क्राइम केस सॉल्व होगा तो किस में हेल्प होगी हमारी? लॉ में, जस्टिस में, क्रिमिनल जस्टिफिकेशन, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में. सो thus forensic science is application of basic science to criminal justice system. The term forensic is derived from the Latin word forensis, meaning belonging to the courts of justice or public debate. So forensic science is deeply connected to the justice system. Next we have this image. In this image we can see a person, an individual wearing a PPE kit, a protection kit, and collecting some type of evidence from the floor. And we can see it is an outdoor crime scene. There is a type of shell that is maybe a cartridge shell and a board of 8 number. उसके आगे रखा है हमारा एक कलेक्शन किट. सूटकेस में काफ़ी सारे टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, जिसकी मदद से वो सारी चीज़ें कलेक्ट करेगा. तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल क्या होता है? फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, जो लैब में काम करते हैं, जो क्राइम सीन पे काम करते हैं. सो ये जो इंडिविजुअल है ये क्राइम सीन पर प्रेजेंट है, तो मीन्स ये क्राइम सीन एक्सपर्ट है. क्राइम सीन एक्सपर्ट का काम क्या होता है कि ये क्राइम सीन है. क्राइम सीन क्या होता है? जहाँ पे क्राइम हुआ है, बॉडी ऑफ क्राइम. तो वहाँ पर जब वो वहाँ पे जाएगा पहले, ठीक है, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करेगा. डेट इज़ द फर्स्ट स्टेप. There are several steps to carry on the process of investigation, and first step is protect the crime scene. क्योंकि जितने ज़्यादा वहाँ पे लोग होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा क्राइम सीन डिस्टर्ब होगा. एंड वी नो अगर कहीं पे भी कोई क्राइम सीन होता है या फिर कुछ भी वहाँ पे घटना होती है तो वहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत जल्दी लगती है. तो इस चीज़ को प्रिवेंट करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली वहाँ पे जितने ज़्यादा लोग आएंगे हमारा क्राइम सीन उतना वायलेट होगा और हमारे एविडेंसेस उतने ही ख़राब होंगे, वहाँ पे मिटेंगे. देन वी कैन सी, सो जो हमारा क्राइम सीन एक्सपर्ट है, जो ये इंडिविजुअल है, ये वहाँ पे जाएंगे, देख प्रोटेक्ट करेंगे क्राइम सीन को, वहाँ की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सारी चीज़ें करेंगे हर एक एंगल से. उसका एक रफ स्केच बनेगा, उसके बाद उसका एक फाइनल स्केच बनेगा. उसके बाद ये वहाँ पे मतलब कि सब कुछ एनालाइज करेंगे कि कौन सा सर्च मेथड लगाना चाहिए, कि ओपन एरिया है, वाइड एरिया है, किस तरह का सर्च मेथड लगेगा. काफ़ी सारे सर्च मेथड्स होते हैं फॉरेंसिक साइंस के लिए. मतलब क्राइम सीन पे कौन सा फॉलो करना चाहिए. लाइन सर्च मेथड होता है, जोनल सर्च मेथड होता है, ग्रिड मेथड होता है. ये सारे मेथड्स इनमें से कोई एक क्राइम सीन को देखते हुए फॉलो किया जाता है. तो उसके बाद ये जो हमारे 8 नंबर जो हम देख सकते हैं, ये होते हैं हमारे टैग्स. हर एक एसेंशियल जो इम्पॉर्टेंट
इनका ये रोल भी होता है कि कौन सा एविडेंस एसेंशियल है वो देखना। तो ये टैग्स लगाए जाते हैं कि हाँ यहाँ पे 1 लगेगा, 2, 3, पहले हमें ये डिस्कवर हुआ, उसके बाद हमें ये चीज़ मिली है, उसके बाद हमें ये चीज़ मिली है, उस तरह से टैग लगाए जाते हैं। और ये यहाँ पे कलेक्शन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग अ फोर्सेप्स। सो नाउ लेट्स मूव टू, ये इमेज आपके फॉरेंसिक साइंस के इंट्रोडक्शन के लिए थी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फॉरेंसिक साइंस। So, the development of forensic science gained momentum in the 19th century. 19th century से forensic science establish हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं, आपको शर्लॉक होम्स के बारे में पता होगा। शर्लॉक होम्स एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं, और ये बुक लिखी गई थी सर आर्थर कॉनन डॉयल के द्वारा। तो इनके अलावा काफ़ी सारे पायनियर्स हैं जिन्होंने अपना फॉरेंसिक साइंस में कंट्रीब्यूशन दिया है। पहले है हमारे पास अल्फोंस बर्टलन। अल्फोंस बर्टलन ऑफ फ्रांस वाज द फर्स्ट टू इवॉल्व अ साइंटिफिक सिस्टम ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन 1879। 1879 में पहली बार इन्होंने साइंटिफिक सिस्टम दिया था जो एक पर्सनल इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन के लिए था। लेकिन इन्होंने एक एंथ्रोपोमेट्री सिस्टम था। एंथ्रोपोमेट्री होता है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स। तो मेजरमेंट्स के बेस्ड ह्यूमन बॉडी मेजरमेंट्स के ऊपर बेस्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम था। इन्होंने मग शॉट सिस्टम भी दिया था। मग शॉट क्या होता है कि अगर कोई हमारा क्रिमिनल होता है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसकी फ़ोटोग्राफी की जाती है। तो वो हमारी 3 एंगल से की जाती है, फ्रंट एंगल, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, और ये अभी भी होता है। तो ये अल्फोंस बर्टलन ने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्यू ऑर्फिला। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी, और जो फादर ऑफ टॉक्सिकोलॉजी हैं वो हैं पैरासेल्सस। तो मॉडर्न टॉक्सिकोलॉजी के फादर अलग हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया था, पॉइजन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं, उसके लिए इन्होंने मेथड्स दिए थे साइंटिफिक, जो आज भी यूज़ होते हैं। थर्ड है हमारे पास फ्रांसिस गैल्टन। इन्होंने फिंगरप्रिंट्स के लिए दिया था कि फिंगरप्रिंट्स कैसे स्टडी करते हैं, उसके ऊपर बुक भी लिखी थी इन्होंने। और इन्होंने फिंगरप्रिंट्स को डिवाइड किया था 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम में, 3 टाइप्स में, आर्चेस, लूप्स एंड वर्ल्स। नेक्स्ट है हमारे पास एडमंड लोकार्ड। एडमंड लोकार्ड ने की फेमस सेइंग है, एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ट्रेसेस। तो इसका मतलब ये है कि इसी के बेसिस पे इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज दिया है, जिसके ऊपर हमारी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी एविडेंस विच इज़ इन फॉरेंसिक साइंस, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल। बिकॉज एक क्रिमिनल है, अगर वो एक जगह पे जा रहा है, क्राइम करके आ रहा है, क्रिमिनल नहीं, कोई भी इंडिविजुअल है, वो एक जगह पे जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अपना वहाँ पे ट्रेस ज़रूर छोड़ता है। सपोज आई एम पुटिंग माई हैंड ऑन अ सर्फेस ऑन अ टेबल, देयर इज़ स्वेट ऑन माई फिंगर्स। जो हमारा फिंगरप्रिंट होगा वो स्वेट की वजह से टेबल पे आएगा, और जो टेबल पे डस्ट होगी वो हमारी फिंगर्स पे आएगी। दैट इज़ एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल ऑफ exchange of matter between 2 objects, 2 things. Okay, then we have Dr. Karl Landsteiner. He gave the classification system for blood. Calvin Goddard, इन्होंने कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के लिए दिया था कि कंपैरिजन माइक्रोस्कोप को मतलब कि कंपैरिजन माइक्रोस्कोप डेवलप किया था। अब कंपैरिजन माइक्रोस्कोप हमारा ऑब्वियसली नेम से पता लग रहा है कि 2 चीज़ों को कंपेयर करें। कंपैरिजन होता है सिमिलर चीज़ों में, ओनली लाइक थिंग्स कैन बी कंपेयर्ड। So, like doesn't mean that identical things, only similar things can be compared. This means अगर एक आपको ह्यूमन हेयर को कंपेयर करना है तो आप एनिमल हेयर के साथ कंपेयर नहीं करोगे, ह्यूमन हेयर को आप ह्यूमन हेयर के साथ कंपेयर करोगे। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने बुलेट्स के लिए किया था कि बुलेट्स हैं, सपोज हमारे पास एक बुलेट है जो हमें क्राइम सीन से मिली है, और हमारे पास वेपन भी है, तो हम उसमें वेपन में फिर से टेस्ट फायर करते हैं, जो हमें बुलेट मिलती है, हम दोनों को एनालाइज करते हैं कि जो हमारे पास सैम्पल बुलेट है क्या वो इसी वेपन से निकली है। नेक्स्ट है हमारे पास अल्बर्ट ऑसबोर्न। इन्होंने डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के ऊपर प्रिंसिपल्स दिए थे, और इन्हीं की वजह से जो डॉक्यूमेंट है एज एविडेंस एक्सेप्ट होता है कोर्ट में। सो with the establishment of Central Forensic Science Laboratory in Calcutta in the year of 1957, a comprehensive criminalists laboratory under one roof had come into existence. तो जो हमारी इंडिया में शुरुआत हुई थी फॉरेंसिक साइंस की ऑफिशियली, वो हुई थी 1957 में CFSL कैलकाटा में, जब ये
इस्टेब्लिश हुई थी CFSL। उसके बाद हमारी CFSLs इस्टेब्लिश होती गई, जैसे कि कलकत्ता में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में, न्यू दिल्ली, गुवाहाटी, भोपाल एंड पुणे। यहाँ हर जगह हमारी टोटल गिन के 7 CFSLs हैं एट प्रेजेंट और 32 स्टेट फॉरेंसिक लैब्स हैं। उसके बाद 90+ रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब्स हैं और हमारे पास मिनी एंड मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज भी हैं। सपोज मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज आर लाइक अ वैन carrying all the instruments or tools needed to conduct experiments, small preliminary experiments on the crime scene. So they contain all types of tools. अगर सपोज़ हमें क्राइम सीन पे ही छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं या फिर पीएच टेस्टिंग हो गई, ये तो कलेक्शन किट से ही हो जाती है, ठीक है। पीएच टेस्टिंग हो गई, कोई प्रीलिमिनरी टेस्ट करना है, लाइक जस्ट 2 सॉल्यूशंस को मिक्स करना है और हमें रिजल्ट मिल रहा है, दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मोबाइल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। देन वी हैव ब्रांचेस ऑफ फॉरेंसिक साइंस। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, जैसे कि बैलिस्टिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, लाई डिटेक्टर, सीरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, क्राइम सीन मैनेजमेंट, साइबर क्राइम। इनके अलावा भी फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं, बट ये सारी ब्रांचेस वो हैं जनरल ब्रांचेस जो हमें हर एक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में देखने को मिलती हैं। जो बैलिस्टिक्स है उसमें हमारा गन, इम्प्रोवाइज्ड वेपन्स का सारा आता है, एम्यूनिशंस आती हैं, कार्ट्रिज केसेस आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं इनका एग्जामिनेशन किया जाता है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल एविडेंस होता है, लिविंग बींग से रिलेटेड और प्लांट से रिलेटेड। केमिस्ट्री में हमारे सारे केमिकल्स एनालाइज किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास होता है पेट्रोलियम हो गया, हमें ओरिजिनल सैंपल टेस्ट करना है कि इसमें वाटर तो नहीं मिलाया गया है, ऐसी चीज़ें आती हैं। फिज़िक्स एक्सप्लोजिव भी आते हैं केमिस्ट्री में। फ़िज़िक्स में हमारे पास अगर कोई बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है कि कैसे हुई है, कितनी फोर्स लगी है, ये सब चीज़ें आती हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट्स एनालाइज किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स की एज देखी जाती है, पेपर क्वालिटी देखी जाती है, जिस इंक से वो पेपर लिखा गया है उस इंक को एनालाइज किया जाता है। इन सब चीज़ों के लिए टूल्स होता है, जो सीक्रेट राइटिंग्स होती हैं उनको एनालाइज किया जाता है, सुसाइड नोट्स होते हैं वो एनालाइज किए जाते हैं, और काफ़ी सारे क्वेश्चन डॉक्यूमेंट जैसे कि फोर्ज्ड होते हैं, करेंसी नोट्स हो गए फोर्ज्ड जो होते हैं, जिनको हम नॉर्मली ऐसे आई से देख के नहीं बता सकते हैं कि हाँ ये फोर्ज्ड है। इस लेवल तक की फोर्जरी को हम सारी ऐसी फोर्जरीज को क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट है लाई डिटेक्टर ब्रांच भी होता है, जिसमें लाई डिटेक्टर मशीन होती है जो हमारे जनरली हमारे पल्स रेट के और हार्ट बीट के बेस पे काम करती है। नेक्स्ट है सीरोलॉजी में सारे सीरम्स, ब्लड, ह्यूमन जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वही होता है, बट इतना प्लांट से रिलेटेड नहीं होता है, ह्यूमन ओरिजिन ही इसमें किया जाता है, मतलब कि जो हमारा ओरिजिन है मेनली इसमें वो पता किया जाता है। तो सीरोलॉजी को कहीं कहीं पे बायोलॉजी के अंडर भी कंसीडर किया जाता है। टॉक्सिकोलॉजी इट इज़ फॉर द एनालिसिस ऑफ पॉइजन, अल्कोहल, लाइक पॉइजन्स एंड ड्रग्स। एंड पॉइजन्स में हमारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ऑल टाइप ऑफ हैवी मेटल्स, इन सब से जो पॉइजनिंग होती है उनको एनालाइज किया जाता है। जैसे हमारा कोई पोस्टमार्टम के बाद विसरा आया है लैब में, तो उस विसरा को हम एनालाइज करेंगे विद द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन से हमारे पार्ट्स में हमारे पास लिक्विड आता है, जिसमें हम एनालाइज करेंगे कि हमारे पास ये गैस है या फिर ये अल्कोहल है, इसमें ये प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है इसमें कि नहीं है, या फिर अगर इसमें इंसेक्टिसाइड है, इस इंडिविजुअल ने मरने से पहले पॉइज़न लिया था तो इसमें पॉइज़न आएगा तो कौन सा आएगा। तो उसके लिए काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा प्रोसेस होता है वो डिस्टिलेशन का होता है। तो उसके बाद है क्राइम सीन मैनेजमेंट में क्राइम सीन एक्सपर्ट्स होते हैं जो क्राइम सीन पर जाते हैं। जैसे हमने पहले इमेज में बात की थी, जो क्राइम सीन एक्सपर्ट थे उन्होंने कलेक्ट किया सैंपल को, क्योंकि उन्हें प्रॉपर नॉलेज होती है कि कैसे, उनको एक्सपीरियंस होता है कि कहाँ से हमें क्या एसेंशियल एविडेंस मिलेगा। उसके बाद है हमारा साइबर क्राइम में सारे के जो हमारे कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, जो कंप्यूटर, मोबाइल, काफ़ी सारे डिवाइसेस हैं जिनसे हमारे साइबर क्राइम आजकल हो रहे हैं, वो सारे इस यूनिट में एनालाइज किए जाते हैं। कि किसी का हमें आईपी एड्रेस निकालना है, किसी की आईडी हैक हो गई है, वो कि कहाँ से, किस सिस्टम से आईडी हैक हुई है, ये सारी जो होती है हमारी एग्जामिनेशन, ये साइबर क्राइम में आती है। नेक्स्ट वी हैव this is the flowchart for for branches of forensic science. Next we have flowchart for branches of forensic science.
we have discussed all, and this is the like forensic biology. It is divided further into several branches such as DNA analysis, forensic anthropology, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री. तो डीएनए एनालिसिस में क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट रिलायबल वे टू आइडेंटिफाई अ पर्सन. मतलब कि हमारे पास ब्लड, सलाइवा, हेयर रूट या फिर टिश्यू जैसी अगर हमारे पास बायोलॉजिकल एविडेंसेस हैं तो उससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे और पर्सन की आइडेंटिटी पता करेंगे कि ये पर्सन है कौन. अगर हमारे पास स्टैंडर्ड है तो उससे मैच करेंगे. अगर हमारे पास कोई फैमिली मेम्बर है उनका, उनकी माता, उनके पिता है, तो उनके साथ हम उनका मैच करेंगे. फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी इट डील्स विद ह्यूमन स्केलेटन्स. अगर हमारे पास कोई बोन्स हैं, ठीक है, हम बोन्स से भी पता लगा सकते हैं कि ये ह्यूमन बोन है फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर उसके बाद ये कौन सी रेस का बोन है. हमारे पास काफ़ी सारी रेसेस होती हैं. मोंगोलॉइड्स होते हैं, कॉर्सकॉइड्स होते हैं, निग्रॉइड्स होते हैं. उसके बाद हम पता लगाएंगे कि ये मेल बोन है कि फीमेल बोन है, या फिर एंसेस्ट्री भी बोलते हैं. ठीक है, इन सारी चीज़ों को ये सारी आती है फोरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी में. और अगर इनसे डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है बोन से तो वो भी किया जाता है. फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट स्टडी द डेड बॉडी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम टू फाइंड आउट द कोज ऑफ डेथ. वो ये डिसाइड करते हैं कि डेथ नेचुरल थी या फिर एक्सीडेंट था या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी थी. तो ये होता है हमारा पैथोलॉजी में. एंटोमोलॉजी में क्या होता है? इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड दैट इन्वॉल्व्स इंसेक्ट्स जो हमारे डेड बॉडी पे लगते हैं. सपोज एक बॉडी है, उसको वो लावारिस थी, उसको किसी ने एक्सप्लोर किया कम से कम 3-4 दिन बाद तक ऑब्वियसली उस पर मैगोट्स आएंगे, इंसेक्ट्स होंगे, काफ़ी सारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे. तो उस पर जो मैगट्स प्रेजेंट होंगे हम उनकी एज देखेंगे. लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं, ठीक है, उसमें एज देखी जाती है. सपोज़ उसकी एज जो है हमें पता लगी है कि 4 डेज़ उसकी एज है मैगट्स की. ये इतना जो उसकी लेंथ होती है मैगट की वो सपोज़ उसकी लेंथ है हमारे पास 2 सेंटीमीटर. 2 सेंटीमीटर जो है वो 4 डेज़ में इतना बड़ा हो जाता है. ठीक है, तो हमें पता लगेगा, इससे हमें ये पता लगेगा कि जो हमारा डेड बॉडी है वो 4 डेज़ पहले उसकी डेथ हुई थी. मीन्स हमें क्या पता लगाने में मदद की उसने? टाइम सिंस डेथ. उसके बाद है हमारे पास फोरेंसिक बॉटनी इट स्टडीज़ द प्लांट एविडेंस. जैसे कि क्राइम सीन से मतलब कि गिरे हुए लीव्स, सीड्स या कपड़ों पे लगा हुआ पोलन, इनसे हम लोकेशन पता करेंगे कि हमारी जो बॉडी थी इस एरिया में थी. बिकॉज ऑब्वियसली हर एक एरिया में अलग अलग प्लांट्स होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स होते हैं, उनसे पॉलन्स जो है, तो हमें वो पता लगता है कि ये जो बॉडी है, ये इंडिविजुअल है, ये कहाँ कहाँ जाके आया है या फिर कहाँ पे ये डेथ हुई थी और कहाँ पे इसको ट्रांसफ़र किया गया है. उसके बाद बायोलॉजिकल केमिस्ट्री. दिस एरिया स्टडीज़ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड बायोलॉजिकल मटेरियल्स. जैसे एंजाइम्स या प्रोटीन्स बॉडी फ्लूइड्स में चेंज हो जाते हैं, तो जो डेथ या स्ट्रेस की वजह से होता है कि इन चेंजेस को डिटेक्ट किया जाता है. मतलब हमारी बॉडी जब मतलब कि डेड बॉडी हो चुका है, एक इंसान की डेथ हो चुकी है, ठीक है, उसके बाद भी हमारे अंदर जो है बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनको एनालाइज करना बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में आता है. इसकी वजह से भी हम पता करते हैं कि कोज ऑफ डेथ क्या था और इसके अंदर मतलब कि क्या प्रोसेसेस हो रही हैं. उसकी वजह से हमारे अंदर पीएम चेंजेस आते हैं, मतलब एक डेड बॉडी के अंदर पीएम चेंजेस आते हैं. So forensic biology is not just one thing, it is a combination of many fields. Each sub-branch plays a small but very important role in solving crimes. Next we have famous cases that were solved using forensic biology. First is तंदूर मर्डर केस. इस केस में क्या हुआ था आपने सुना भी होगा. नैना साहनी जो एक महिला थी, उनके साथ उनके फियांसे ने क्या किया कि उनको मार दिया था, उनका मर्डर किया था और उसके बाद उनकी बॉडी को चॉप किया इनटू पीसेस और उन पीसेस को उन्होंने अपने फ्रेंड के रेस्टोरेंट में एक तंदूर में डाल दिया, हाइड करने के लिए ऑब्वियसली. और वहाँ पे जैसे पुलिस पेट्रोलिंग कर रही होगी तो उन्होंने देखा कि कुछ अलग तरह की फ्लेम्स आ रही हैं इस तंदूर में से, तो उन्होंने उसको चेक किया तो उसमें ह्यूमन बॉडी पार्ट्स निकले. सो इससे में ह्यूमन बॉडी पार्ट्स निकले. अब हमें तो नहीं पता था कि वो कौन है, क्योंकि वो तो पूरा बर्न हो चुका होगा ना. तो उसमें हमें जो हमारे पास फ्लैश बचा था या बोन्स बची थी, उससे डीएनए एनालिसिस की गई और जो मिसिंग रिपोर्ट थी, ठीक है, जो मिसिंग रिपोर्ट्स होती हैं ऑब्वियसली हमारे पास, तो उनसे मैच किया गया, तो फिर वो नैना साहनी का था.
नेक्स्ट है हमारे पास निर्भया मर्डर केस। निर्भया मर्डर केस एक इनह्यूमन रेप केस था, ट्रेजिक केस था जो दिल्ली में हुआ था। इनके साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली रेप किया गया था और ये एक बस में हुआ था। अगर आपको ये इस केस के बारे में पता है तो इसमें क्या हुआ था, जो सीमेन स्टेन्स मिले थे, जो उनकी नेल स्क्रैपिंग्स थी, जो हेयर एविडेंस था, उससे हमें पता लगाया था कि जो एक्यूज़ है कौन है। तो ये जो काफ़ी सारे केसेस हैं जो फॉरेंसिक बायोलॉजी की मदद से सॉल्व होते हैं। ऑलमोस्ट सेक्सुअल असोल्ट रेप केसेस और मर्डर केसेस, सुसाइड हैंगिंग्स जो होती हैं, ये ड्राउनिंग केसेस होते हैं, ये सारे के सारे फॉरेंसिक बायोलॉजी की मदद से ही सॉल्व होता है। नाउ दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी। तो फॉरेंसिक बायोलॉजी का हमने यूज़ देख लिया कि इसमें आता क्या है, ब्रांचेस क्या है, ये भी देख ली। अब फॉरेंसिक बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या? So it deals with physical evidence pertaining with human beings and animal, like living beings से related होता है human और animal and as well as plant origin। तो ये सारी एविडेंस को हम बायोलॉजिकल एविडेंस भी कहते हैं। एंड बायोलॉजी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन बाय प्रोवाइडिंग फोरेंसिक साइंटिस्ट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज with valuable tools and techniques to analyze biological evidence, identify suspects and solve crimes। तो जो मतलब हमारा बायोलॉजिकल एविडेंस की अगर एनालिसिस हो रही है, उसके बाद एक रिपोर्ट बनती है, तो ऑब्वियसली अगर उस रिपोर्ट में हमें कुछ पता चलता है, ठीक है, वो पॉजिटिव आती है, मैच कर जाती है हमारे सस्पेक्ट के साथ, तो ये लॉ मतलब कि लॉ में हेल्प करेगा। ऑब्वियसली जो केस है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इट हेल्प्स लॉ एनफोर्समेंट आइडेंटिफाई सस्पेक्ट एंड रिकंस्ट्रक्ट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द क्राइम। तो सिंपल लैंग्वेज में समझें तो फॉरेंसिक बायोलॉजी किसी भी लिविंग या वंस लिविंग चीज़ का एनालिसिस करता है जो क्राइम सीन से मिलती है। ओके, सो दीज आर द टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस फाउंड इन फॉरेंसिक बायोलॉजी। फर्स्ट इज ब्लड, वेट, ड्राई, स्टेन। इन तीनों में मिल सकता है, हमें वेट ब्लड मिल सकता है, ड्राई मिल सकता है अगर ज़्यादा काफ़ी टाइम हो चुका है, और स्टेन भी मिल सकते हैं। स्टेन्स होते हैं कि ब्लड स्टेन पैटर्न्स होते हैं, सपोज वॉल पर हो गया, ये सारी चीज़ें। तो पोलन, लीव्स एंड डायटम्स, जैसे कि हमने फॉरेंसिक बॉटनी में बात की, पोलन, लीव्स एंड डायटम्स हमारे होते हैं रिवर्स में, सीज में, और ये जो वाटर बॉडीज़ होती हैं डिपेंड करता है कि कौन सी है। सी है तो उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ के डायटम्स होंगे, और दूसरी वाटर बॉडीज़ है तो उसमें अलग स्पीशीज़ के डायटम्स होंगे। तो डायटम्स का क्या रोल होता है कि सपोज़ एक डेड बॉडी है, वो हमें एक वाटर बॉडी से मिली है, ठीक है। अब हम कैसे पता करेंगे कि वो डेड बॉडी उसको मार कर पानी में फेंका गया है, या फिर वो खुद जंप किया था, उसने खुद सुसाइड किया था, या फिर मतलब कि एक्सीडेंटली गिरा था, मतलब कि खुद से गिरा था, किसी ने इंटेंशनली नहीं धक्का दिया। मतलब इंटेंशनली धक्का देगा तो ऑब्वियसली ड्राउनिंग से डेथ होगी, तो वो भी इसमें देखा जाएगा। या फिर दो फैक्टर्स होते हैं, उसकी डेथ पानी में जब बॉडी मिली उससे पहले ही हो चुकी थी, या फिर पानी में गिरने के बाद हुई है, ठीक है। तो हमें कैसे पता करेंगे? अगर उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी और उसके बाद उसको पानी में फेंका गया था, तो उसके रेस्पिरेटरी एरिया में मींस लंग्स में हमें डायटम्स नहीं मिलेंगे। बट अगर उसने पानी में धक्का दिया गया है, या वो खुद गिरा है, ठीक है, या फिर उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, तो वो स्ट्रगल करेगा, वो सांस लेगा, तो उसके रेस्पिरेटरी एरिया में, लंग्स में डायटम्स मिलेंगे। तो इसका एनालिसिस करते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि ड्राउनिंग केस में मतलब कि क्या हुआ था। उसके बाद है हमारा एंटोमोलॉजिकल एविडेंस। एंटोमोलॉजिकल एविडेंस हमारा होता है, जैसे कि हमने फोरेंसिक एंटोमोलॉजी में बात की, लार्वा, फ्लाइज एंड बीटल्स, इन सब के लाइफ साइकिल देखते हैं और इससे हम टाइम सिंस डेथ पता करते हैं। नेक्स्ट वी हैव सीमेन। सीमेन हमें सेक्सुअल असोल्ट रेप केसेस में मिलता है। फोरेंसिक डीएनए टाइपिंग। Forensic DNA typing is simply the DNA analysis. हेयर एंड बोन्स से हम डीएनए निकाल सकते हैं, हेयर से हम ओरिजिन पता कर सकते हैं, और हम मैच कर सकते हैं सस्पेक्ट के साथ कि ये हेयर जो हमें मिला है और हमारे पास स्टैंडर्ड हेयर जो हम सस्पेक्ट से ले रहे हैं, क्या ये मैच करते हैं। बोन्स से भी हम ये पता लगाते हैं कि कौन से ह्यूमन ओरिजिन है और ये फीमेल है कि मेल है।
saliva, urine, milk and tissues. These are all biological evidences that are analyzed in forensic biology branch of forensic science. नेक्स्ट वी हैव केसेस टेकन अंडर फॉरेंसिक बायोलॉजी. फॉरेंसिक बायोलॉजी में केसेस किस तरह के लिए जाते हैं. पहला है हमारे पास होमिसाइड और मर्डर. होमिसाइड और मर्डर हमें पता है क्या होता है. मर्डर जब किसी को मार देना और होमिसाइड किसी को मारना बट किसी के थ्रू. सेकेंड इज सेक्शुअल असोल्ट और रेप. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मिसिंग पर्सन. अगर कोई अननोन डेड बॉडी आई है तो हमें उसका डीएनए एनालिसिस करके हम मिसिंग पर्सन के साथ, मतलब कि हमारे पास कोई मिसिंग रिपोर्ट भी है तो उनके जो फैमिली पर्सन होंगे या फिर उनके रिलेटिव में होंगे, हम उनका मतलब कि डीएनए मैच करके पता लगा सकते हैं कि हाँ ये इन्हीं को ही बिलोंग करते हैं. उसके बाद है मास मर्डर. मास किलिंग्स होती हैं, उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हेल्प करता है. ब्लड ग्रुपिंग में हेल्प करता है. फॉरेंसिक डीएनए टाइपिंग. ये सारे जो केसेस हैं ये फॉरेंसिक बायोलॉजी में आता है. पैटर्निटी टेस्टिंग भी आता है. अगर कोई अबॉर्टेड फीटस है तो उसके लिए भी आता है कि इनके जो पैटर्निटी, इनके जो फादर है वो कौन है. मैटर्निटी टेस्टिंग भी होती है बट वो थोड़ी अनकॉमन है. एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम डेथ, जैसे कि मैंने आपको ड्राउनिंग में बताया. एंटीमॉर्टम मीन्स बिफोर डेथ एंड पोस्टमॉर्टम मीन्स आफ्टर डेथ. नेक्स्ट वी हैव एप्लीकेशंस ऑफ फॉरेंसिक बायोलॉजी. तो एप्लीकेशंस क्या हैं फॉरेंसिक बायोलॉजी, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ऑब्वियसली पहले तो ये सारी क्रिमिनल केसेस जो भी हमने ऊपर किया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में सारे केसेस को सॉल्व करने में अप्लाई हो रहा है. सेकंड, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में हम आइडेंटिफाइंग बॉडीज़ इन केसेस ऑफ मिसिंग पर्सन्स और मास डिसास्टर्स. देन वी हैव वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स लाइक इन्वेस्टिगेटिंग पोचिंग एंड इलीगल एनिमल ट्रेड. अगर हमारे पास जैसे जो ये हाथी के दांत होते हैं, ये टाइगर फर होता है, ये सारी चीज़ें जो हमारी इलीगल ट्रेड होती है इन सब चीज़ों की, तो इसको भी हम फॉरेंसिक बायोलॉजी में के अंडर आता है. क्योंकि यहाँ पे हमें एनालाइज करना होता है कि ये जो अगर हमें क्राइम सीन पे ब्लड मिला है या फिर ये जो हमें हेयर है, ये एनिमल हेयर है, तो ये कौन सी स्पीशीज़ का हेयर है, ये सब हमारा वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में आता है. एस्टिमेटिंग टाइम सिंस डेथ, ये एंटोमोलॉजी, यहाँ पे भी फॉरेंसिक बायोलॉजी अप्लाई की जाती है. डिटेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फ्लूइड्स, यहाँ पे भी फॉरेंसिक बायोलॉजी अप्लाई की जाती है डिटेक्ट करने के लिए कि ये फ्लूइड जो हमें मिला है ये क्या है. सपोज़ हमें क्राइम सीन पे एक रेड कलर का फ्लूइड मिला है और हम देखते नहीं कह सकते कि ये ब्लड है, क्योंकि रेड कलर का फ्लूइड कुछ भी हो सकता है. तो हमें पहले उसके लिए टेस्ट करना पड़ेगा कि ये ब्लड है या कुछ और. तो उसके लिए पहले हम प्रीलिमिनरी टेस्ट करेंगे और उसके बाद कन्फर्मेटरी टेस्ट भी होता है. तो सबसे पहले हम ब्लड के केसेस में क्या करते हैं, हर एक केस में ऐसा होता है, हर एक बायोलॉजिकल एविडेंस में ऐसा होता है कि पहले हम उसका ओरिजिन पता करेंगे, उसके बाद हम स्पीशीज़ पता करेंगे, उसके बाद हम जाके उसका कंपैरिजन करेंगे हमारे स्टैंडर्ड सैंपल्स के साथ, अगर हमारे पास मिलते हैं हमें स्टैंडर्ड सैंपल्स तो. नेक्स्ट है हमारे पास क्राइम सीन लिंकेज. क्राइम सीन के साथ बायोलॉजिकल एविडेंस जो है लिंक करते हैं, तो यहाँ पे भी फॉरेंसिक बायोलॉजी हेल्प करता है. एंड सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स. ऑब्वियसली अगर हमारी रिपोर्ट आ रही है, जो हम रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो हमारा लीगल प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट करेगा. और जो हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं ये कोर्ट में जाके अपनी फॉरेंसिक टेस्टिमनीज़ भी देते हैं कि क्योंकि जो हमारे जजेस होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, इन लोगों को साइंटिफिक नॉलेज कैसे हुआ है, ये मैकेनिज़म्स नहीं पता होते हैं इसके पीछे कि ये टेस्ट ये ऐसे कैसे हुआ है, मतलब कि टेस्ट का रिज़ल्ट ऐसा क्यों आया है. तो इन सब चीज़ों को समझाने के लिए एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट होता है, वो कोर्ट में अपनी टेस्टिमनीज़ देता है. तो दस फॉरेंसिक बायोलॉजी सपोर्ट लीगल प्रोसीडिंग्स. नेक्स्ट इज़ द कंक्लूजन. सो हेयर वी कम टू द एंड फॉर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. तो फॉरेंसिक बायोलॉजी में हमने क्या समझा कि इट हेल्प सॉल्व क्राइम नॉट जस्ट बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल बट ऑल्सो बाय इंटरप्रेटिंग हाउ बायोलॉजिकल एविडेंस फिट्स इनटू द स्टोरी ऑफ अ क्राइम. मतलब कि ये एविडेंस कैसे इस क्राइम सीन में, मतलब कि इस स्टोरी ऑफ क्राइम में फिट होता है. सपोज़ हमें एक हेयर मिला है, तो वो हेयर वहाँ पे आया कैसे, वो पुल्ड हेयर है, किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती हुई है तब वो पुल्ड हेयर वहाँ पे आया है, ठीक है. या फिर कोई कटिंग है, ठीक है, किसी का कट किया हुआ हेयर है. पुल्ड हेयर जो होता है उसमें हमारे पास हेयर रूट होती है, उससे हम डीएनए एनालिसिस कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें एनालाइज की जाती हैं कि जो ये बायोलॉजिकल एविडेंस है इससे पता किया जाता है कि क्राइम सीन पर हुआ क्या है.
अगर हमें सीमेन मिला है तो हम बताएंगे कि हाँ यहाँ पे सेक्सुअल असोल्ट हुआ है, रेप हुआ है, ठीक है। अगर हमें यूरिन मिला है तो हम ये भी कहते हैं, अगर सपोज़ हमारे पास कोई डेड बॉडी है, उसकी क्रॉच एरिया पे हमें यूरिन मिला है तो हम, और हमें वो सारे उसके और सारी चीज़ें सुसाइड की तरफ इशारा कर रही हैं, तो हम इससे ये बताएंगे कि हाँ ये एक सुसाइड थी। तो जो बायोलॉजिकल एविडेंस है वो हमें क्राइम कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये बताने में भी हेल्प करता है। And last, I would like to end this with a quote: "Evidence never lies, but it waits for the right mind to uncover its truth." एक सही पहचान, एक सही तरीका, एक सही एनालिसिस, एक सही एग्जामिनेशन ही एक एविडेंस का अच्छे से यूज़ करके एक केस को सॉल्व कर सकता है। बिकॉज़ अगर एविडेंस है वो पड़ा है, उसको एनालाइज ही नहीं किया गया है, उसको समझा ही नहीं गया है कि हाँ ये भी एक तरह का एविडेंस हो सकता है। अब मैं आपको अगर बताऊं तो आरुषि तलवार मर्डर केस में काफ़ी सारे एविडेंसेस थे, बट पुलिस को इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि उन सारे एविडेंसेस का कैसे यूज़ किया जा सकता है। सारे एविडेंसेस वायलेट हो चुके थे। तो जो फॉरेंसिक साइंस है इसमें चेन ऑफ कस्टडी को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चेन ऑफ कस्टडी को अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो कोई भी केस अच्छे से सॉल्व नहीं होगा। हमारे पास एविडेंसेस पहले ही बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। जो फॉरेंसिक साइंस है वो बाकी साइंसेस से अलग क्यों है? बिकॉज बाकी साइंसेस में हमारे पास सैम्पल्स हैं, फॉरेंसिक साइंस में हमारे पास कंटेमिनेटेड सैम्पल्स हैं, और कंटेमिनेटेड सैम्पल्स को एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए एविडेंस का मतलब कि एविडेंस पहले ही इतनी कम वॉल्यूम में, इतनी कम अमाउंट में होता है, और अगर वो ख़राब हो जाए या वायलेट हो जाए या फिर वो डिस्टर्ब हो जाए क्राइम सीन, तो वो किसी भी यूज़ का नहीं रहता। तो पहली बात तो हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सेकेंड, हमें फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी चाहिए, ठीक है, जो कि आरुषि तलवार मर्डर केस में काफ़ी ज़्यादा उसमें वायलेशन हुई थी। वहाँ पे टेरेस पे, अगर आप इस केस को जानते हो तो आप इसके बारे में पढ़ना, ये शायद 2008 या 2009 में हुआ था। वहाँ पे टेरेस पे उन्हें एक ब्लड स्टेन्ड पाम प्रिंट था, ठीक है, उससे अगर वो चाहते तो एनालिसिस कर सकते थे, उससे ब्लड जो थे वो स्वैब के थ्रू कलेक्ट करके उसका डीएनए एनालिसिस कर सकते थे, ब्लड ग्रुपिंग कर सकते थे, मैच कर सकते थे सस्पेक्ट्स के साथ, बट नहीं हुआ। इसीलिए वो केस जो है अब तक अनसॉल्व्ड है। So next, these are the two books you can follow for forensic biology. First is Handbook of Forensic Biology and Forensic Serology by Dr. Harsh Sharma, and then Forensic Biology by Richard Lee. You can follow these books for forensic biology. Thank you, and mail your doubts, queries or suggestions to thinksaksh@gmail.com in context with forensic biology. You can also mention my name, Charu Saini, forensic biologist. And stay curious and keep learning. See you in the next video where we will explore the biological evidences and its types. Thank you.